Good morning, dear students. Welcome back once again in your computer class. We have already completed chapter number 8, which is coming in your UT2. Now here's your chapter number 10, that is also coming in your unit test 2. So new chapter, 10th chapter is networking of computers. Right? Everybody of you know what is computer? Computer is simply a electronic device. What it is? It is a electronic device which is used to perform some calculations, right? That is computer. So networking of computer means what? When we connect the computers together, with each other, then it will create a network, and the process of connecting the computers together is known as networking. So the thing is, what is networking of computers? When the computers are connected, when suppose these are the computers, all the computers are connected with each other in any way, like this, suppose. Okay? So this is known as your networking. Now look at here. Networking refers to the interconnection of various computers. Interconnection of various computers to share. Why we connect the computers together? हम कंप्यूटर्स को एक दूसरे से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? हम कंप्यूटर्स को इंडिविजुअली भी एक्सेस कर सकते हैं ना. वी कैन परफॉर्म द कैलकुलेशंस ऑन द इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम्स. देन व्हाट इज द नीड टू कनेक्ट देम टुगेदर? सो द थिंग इज, व्हाट इज द एडवांटेज टू क्रिएट द नेटवर्क? Just because to share the data and the information. Like suppose, look at this example in which there is a girl sitting at position number 1. This is person number 1, this is person number 2. ठीक है. Now this girl wants to send the data to this girl, right? So they are connected with each other through a network. This is your complete network. ठीक है. एंड ऑन दिस नेटवर्क पर्सन 1 जो है दैट वांट्स टू सेंड सम डेटा टू द पर्सन 2. यहाँ से इसको मैसेज सेंड करना है इसके पास, तो वो कहाँ जाएगा? फर्स्ट दिस मैसेज विल सेंड ऑन दिस नेटवर्क एंड देन इट विल गेट फाइनली ट्रांसफर टू दिस गर्ल. तो ये जो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, मतलब दोनों सिस्टम्स अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं. दे आर सिचुएटेड एट अ डिफरेंट लोकेशंस, बट स्टिल यू कैन सेंड द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस थ्रू networking. Now networking can be with the help of cables or without cables also. It means जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वायर के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से और वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीन इन योर कंप्यूटर लैब, all the computers are connected with each other with the help of cables. So that is a wired network. That is the example of wired network, right? But आप देखते हो जैसे कि इंटरनेट पे हम क्या करते हैं? आई कैन ईजिली सेंड द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू एनी अदर प्लेस सिटिंग एट इन द डिफरेंट सिटी ऑल्सो. आई कैन ईजिली सेंड द डेटा, बट हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैं अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा तो सेंड कर पा रही हूँ अपने फ्रेंड को, बट ये पॉसिबल कैसे है? बिकॉज ऑल द सिस्टम्स आर कनेक्टेड विद द network, that means with the internet. So that is the example of wireless network. तो ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है वो वहाँ दूसरे किसी आपके फ्रेंड के कंप्यूटर से वायर के थ्रू कनेक्टेड है. वायरलेस कनेक्शन इज देयर, सो यू कैन ईजिली शेयर योर डेटा एज वेल एज द इंफॉर्मेशन. सो फॉर दैट पर्पज वी यूज नेटवर्क, राइट? Then here is networking is done with the help of cables, LAN cards, hubs, modems, etc. Now what are these? केबल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को, लैन कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, हब्स के थ्रू कर सकते हैं, मॉडम्स के थ्रू कर सकते हैं. वी विल स्टार्ट इट फर्दर, लीव इट फॉर नाउ. नेक्स्ट हेयर इज़ योर नेटवर्क सर्वर. ठीक है. अब सर्वर क्या होता है? सर्वर इज़ नथिंग, सर्वर इज़ अ कंप्यूटर. Server is what? Server is a computer which has some disk drives, printer and other information to share with the other computers on a network is called a network server. Means what? इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास computers connected होते हैं, suppose इस तरीके से, these are my computers which are connected with each other in a random order, suppose like this.
समथिंग लाइक दिस. नाउ दिस इज़ व्हाट माई नेटवर्क. ये मेरा पूरा क्या है, नेटवर्क है. तो इसमें से हम क्या करेंगे, किसी भी एक कंप्यूटर को, तो पहले क्या है, पहली एक चीज़ है कि देखो जब भी नेटवर्क पे जो कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उन कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टेशंस. व्हाट आर दोज कंप्यूटर्स, नोन एज वर्क स्टेशन. तो वर्क स्टेशन, व्हाट, वर्क स्टेशन इज़ अ कंप्यूटर विच इज़ कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन, राइट. देन द नेक्स्ट थिंग हेयर कम्स कि आपका सर्वर क्या होता है. सर्वर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा वर्क स्टेशन जिसके पास सारी क्या होती हैं, मतलब उसके पास सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, खुद की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, और बाकी के जो वर्क स्टेशंस होते हैं वो उन सबको शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन कंप्यूटर लैब आई हैव अ कंप्यूटर, फाइन, आई हैव some more computers which are connected like this. Now all these are connected with this, fine. Now suppose I am sitting at this position, I'm using this computer and I have created any document here. मैंने कोई एक पेपर बनाया या कोई एक फाइल बनाई है इस वाले कंप्यूटर के अंदर, ठीक है. बट on this computer we don't have the printer, I don't have the printer, but they all are connected over a network. Now this is your what, server, where we are having printer already, ठीक है. तो अगर मैंने यहाँ पे कोई अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और मुझे उसका प्रिंट आउट निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस सर्वर की हेल्प से, इस सर्वर पे जो प्रिंटर अटैच्ड है उसकी हेल्प से क्या कर सकती हूँ, आई कैन ईजिली टेक द प्रिंट आउट. कैसे निकाल सकते हैं, देखो आप बैठे तो इस वाले सिस्टम पे हो, ठीक है, लेकिन प्रिंटर आपका यहाँ अटैच है, तो आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, बिकॉज व्हाट आई सेड, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्किंग. तो जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो आप एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है. तो इसी तरीके से आप ये जो प्रिंटर है इसको भी क्या कर सकते हो, ये क्या है, प्रिंटर इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द सर्वर साइड. तो इस प्रिंटर को आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ वाले सिस्टम के थ्रू भी एक्सेस करा सकते हो, फाइन. तो जो डेटा मैंने यहाँ पर टाइप किया है, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ टाइप की है उसको मैं इस सर्वर पर एक्सेस करके और उसका प्रिंट आउट फाइंड आउट कर सकती हूँ, उसका प्रिंट आउट मैं निकाल सकती हूँ. सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग कि it helps to share the resources, it helps to share the data, and also it is very cost effective approach. Now what do you mean by cost effective? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है, देखो अगर ये कंप्यूटर्स हमारे सर्वर से कनेक्ट ना होते, मतलब सपोज ये सर्वर नहीं है, तो ये सारे सिस्टम्स जो होंगे वो कैसे होंगे, इंडिविजुअल सिस्टम्स होंगे. अगर इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं तो मुझे हर सिस्टम पे अपना खुद का क्या लगाना पड़ेगा, एक प्रिंटर, टू टेक द प्रिंट आउट. और जितने कंप्यूटर्स हैं अगर आपको उतने ही प्रिंट आउट्स परचेस करने पड़ जाएँ तो क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन होगा दैट विल बी वेरी मोर. अगर आपके घर में 3 कंप्यूटर्स हैं तो आप क्या प्रेफर करोगे कि ओनली 1 प्रिंटर और 3 प्रिंटर्स, ऑब्वियसली 1 प्रिंटर, क्योंकि अगर आप 3 प्रिंटर्स परचेस करोगे सो दैट विल बी वेरी कॉस्टली. तो आप क्या चाहोगे कि एक ही प्रिंटर से मेरा सारे सिस्टम्स पे काम चल जाए, है ना. तो ये कब पॉसिबल होगा, जब आप सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर दो, जब आप सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दोगे एक दूसरे से तो पॉसिबल है कि आप प्रिंटर को एक ही प्रिंटर से अपना सारा वर्क क्या कर सकते हो, डन कर सकते हो, सारा वर्क कंप्लीट करा सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू शेयर द रिसोर्सेज, फाइन. So this is all about your network and network server. Then here is your requirements for networking. Networking के requirements क्या होती है, मतलब जब हम network बनाते हैं तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो लुक एट हेयर, यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस वन इन विच द डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर. तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कंप्यूटर्स ही कनेक्टेड होते हैं, एनीथिंग कैन बी कनेक्टेड, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैन बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, जस्ट लाइक दिस. इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, सो यू विल से दिस इज अ CPU. What is this? This is your router or you can say modem. ठीक है, what is this? Telephone. What is this? You will say switchboard. What is this one? These are your cables. So when you want to connect the devices together, so you need a number of devices. You need a number of devices to make a complete network. So in this paragraph we will study that what are the equipments
are required to connect the network. So here first type is your cables. अब केबल्स देखो, उसने बोला है कि केबल्स के थ्रू हम कनेक्ट कर सकते हैं डिवाइसेस को, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स आर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स. सबसे पहला क्या लिखा हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, देन योर कोएक्सियल केबल, देन योर फाइबर ऑप्टिक केबल्स. नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस अमंग ऑल दीज थ्री टाइप्स ऑफ केबल्स. ट्विस्टेड पेयर केबल्स प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स, यानी कि कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है. लेकिन कैसे कंप्यूटर्स, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन शुड बी देयर, यानी कि एक कंप्यूटर को आप दूसरे कंप्यूटर से ही कनेक्ट कर सकते हो, मतलब वन टाइम ओनली वन कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड. तो ये होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटर्स. फिर हमारे पास आता है कोएक्सियल केबल्स. क्या होते हैं कोएक्सियल केबल्स? भी क्या करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, फाइन. लेकिन जो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं वो आपका टेलीफोन लाइन को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. जैसे आपका टेलीफोन केबल्स अगर आपने देखे होंगे कि नाउ अ डेज वी आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन्स, बट इन द अर्लियर 19th सेंचुरी, वहाँ उस टाइम पे क्या था कि आपका टेलीफोन्स यूज़ होते थे, तो टेलीफोन्स में वायर के थ्रू कनेक्ट रहते थे. तो जब टेलीफोन को कनेक्ट करते थे तो उसमें हम ट्विस्टेड केबल्स का यूज़ करते थे टेलीफोन्स को कनेक्ट करने के लिए. यहाँ पर अब जो है वो है कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल कहाँ यूज़ होते हैं, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्मॉल केबल्स. इट्स परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन दैट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स. ट्विस्टेड पेयर केबल जो होते थे वो बहुत ही चीप होते थे. चीप का मतलब बहुत सस्ते मिल जाते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, तो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती. ठीक है, तो उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए द नेक्स्ट हेयर केम, दैट इज़ योर कोएक्सियल केबल. सो कोएक्सियल केबल में क्या था, कोएक्सियल केबल में आपका जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज समहाउ बेटर देन योर ट्विस्टेड पेयर केबल, somehow better than your twisted pair cable, and it consists of one or more स्मॉल केबल्स. छोटे छोटे उसमें कुछ केबल्स होते थे जिनको मिला के कोएक्सियल केबल बनता है. इनके जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ बेटर देन दैट ऑफ ट्विस्टेड पेयर. इनको यूज़ कहाँ पे किया जाता है, इनको यूज़ किया जाता है जो केबल टीवी केबल्स होते हैं, टीवी केबल्स के मतलब फॉर्म में. ठीक है, जैसे यहाँ देखो, इट इज़ लाइक अ टीवी केबल वायर. I will show you the diagram also for all the three types of cables here. Then the next one is your fiber optic cable. फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होते हैं वो इनसे भी ज़्यादा बेटर होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो बेटर होते हैं, सबसे ज़्यादा जो बेस्ट होते हैं, यू कैन से दैट इज़ अ फाइबर ऑप्टिक केबल. दीज केबल्स आर यूज टू ट्रांसमिट द वॉइस, डेटा एंड वीडियो. आपको पता है कि जब भी आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो तो आप कनेक्ट क्यों कर रहे हो, just to share the information, to share the data. Now data can be of any type. Data can be in the voice form, that means in the audio form, it can be in the video form, it can be in the picture form, anything. ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज़ हायर एज़ कम्पेयर टू अ कोएक्सियल केबल, यानी कि जो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी होती है, मतलब जो डेटा है वो फाइबर ऑप्टिक से आप क्या कर सकते हो, यू कैन ट्रांसफ़र मोर डेटा एज़ कम्पेयर टू द कोएक्सियल केबल. एंड वन मोर थिंग, दैट द परफॉर्मेंस ऑफ सेंडिंग द डेटा बाय दिस फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ फार बेटर देन द कोएक्सियल केबल. So these are the three different types of cables that we generally use. Now I would like to show you here the diagram for all the three types. Now here यहाँ पे देखिए ट्विस्टेड पेयर. ट्विस्टेड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड होते हैं, ट्विस्ट होते हैं. तो जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिस इज़ व्हाट, दीज टू वायर्स आर ट्विस्टेड ओवर ईच अदर, सो दिस इज़ योर ट्विस्टेड पेयर केबल. दिस इज़ योर ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइन, which are used to connect what, telephone lines. Okay, next here comes this one. Have you seen ever जब भी आपने देखा है कि लाइक आप यूज़ टीवी के पीछे देखना है, टीवी में सेटअप बॉक्स जो होता है, सेटअप बॉक्स के बैक साइड में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी दीज टाइप ऑफ केबल्स, जो सेटअप बॉक्स आपके होते हैं. तो केबल टीवी के लिए हम यूज़ करते हैं दीज टाइप ऑफ केबल्स, एंड दीज आर नोन एज योर कोएक्सियल केबल. Coaxial cable, right? Next one is your this one, which is used to connect the networking or for the internet and all. So for this this is known as your fiber optic cable. Clear? Next here,
केबल्स हम पढ़ चुके हैं, अभी हमने देखा यहाँ पे कि हमें केबल्स की रिक्वायरमेंट होती है. अदर देन केबल्स व्हाट एल्स वी रिक्वायर? देन वी रिक्वायर LAN card. Next is your LAN card. So LAN card is what? It is an electronic card attached to the motherboard of the computer. That means motherboard हमारा जो CPU के अंदर हमारे कुछ ऐसी प्लेट होती है जिस पे सारी चिप्स इंस्टॉल्ड होती हैं, तो उसको बोलते हैं मदरबोर्ड. तो LAN कार्ड भी जो होता है वो हमारा क्या होता है? मदरबोर्ड से अटैच होता है. LAN कार्ड का यूज़ क्या होता है? अगर आपको नेटवर्क से कनेक्ट होना है, if you want to connect over the network wirelessly, then you need a card that is known as your LAN card. Next, here comes your hub. Hub is what? Hub is again an electronic device with certain slots which are attached to connect all the computers. ऑब्वियसली जब आप बात कर रहे हो कि नेटवर्क की, तो नेटवर्क का मतलब क्या है? जब आप कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हो इस तरीके से, तो कंप्यूटर्स जो है वो डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते. तो कंप्यूटर्स जो है वो कुछ डिवाइसेस का यूज़ करते हैं. तो जैसे कि हब है, हब इज़ अ डिवाइस इन विच वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ स्लॉट्स लाइक दिस. दिस इज़ योर डिवाइस हब. ठीक है. हब में क्या होता है? बहुत सारे स्लॉट्स बने हुए होते हैं. उन स्लॉट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हो या डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं. तो उसके अंदर छोटे छोटे स्लॉट्स बने हुए होते हैं. फिर नेक्स्ट इज़ योर मॉडम. मॉडम कनेक्ट्स द कंप्यूटर्स टू द सर्वर एट अ डिफरेंट प्लेस यूजिंग द टेलीफोन लाइन. ठीक है. मॉडम भी एक डिवाइस होती है, देखो, जो क्या कर रही है? कंप्यूटरों को सर्वर से कनेक्ट करने का काम करती है. Got my point? To connect the computer to the server using the telephone line, that is known as your modem. Then here is your advantages. Advantage you can read out. Already I have explained all the advantages when I am discussing your introduction part, first paragraph. जब मैंने वो डिस्कस किया था तो ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. You can go through all the points one by one. Then here comes your types of networking. नेटवर्किंग तो हमने पढ़ लिया कि नेटवर्किंग क्या होता है. उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स. तो हेयर वी आर हैविंग 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग: पर्सनल एरिया, लोकल एरिया, कैंपस एरिया, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड एरिया. 5 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग वी हैव. फाइन. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ योर पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट्स वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, सेलुलर फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट विद वन अनदर. यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जो छोटे छोटे डिवाइस, जो कि आपको मतलब आपकी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है ओवर अ वेरी स्मॉल रेंज, यानी कि थोड़ी डिस्टेंस पर, ओवर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और शॉर्टर डिस्टेंस पे डिवाइसेस को कनेक्ट जो करता है उसको बोलते हैं पैन, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क. जैसे कि देखिए, दिस इज़ योर लैपटॉप हेयर. लैपटॉप इज़ कनेक्टिंग विद अ मोबाइल फ़ोन. दिस इज़ योर माइक, headphone. Then this one is your mobile phone again. Here it is your printer. Here is your PDA. Then here is your laptop. That means all the devices are connected with each other with a central part, and this is known as your server. And all these are what? These are your devices. And ये जो पूरा आपका बन रहा है, this is known as your network. कौन सा नेटवर्क है ये? पर्सनल एरिया नेटवर्क. नेक्स्ट इज योर लोकल एरिया नेटवर्क. दैट मीन्स योर LAN. LAN क्या होता है हमारा? दिस रेफर्स टू लोकल एरिया नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स ऑफ द लोकल एरिया आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई केबलिंग. कैसे कनेक्ट होते हैं? केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं ओवर इन अ बिल्डिंग. किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में, जैसे कि किसी इंस्टीट्यूट में, जैसे किसी स्कूल में, किसी फैक्ट्री में, किसी लैब के अंदर, या ऑफिस में, या होटल में. तो ऐसे पर्टिकुलर किसी एक बिल्डिंग की अगर हम बात करें, तो इफ़ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ईच अदर विद इन अ स्मॉल बिल्डिंग, देन वी कैन से इट इज़ अ LAN एरिया नेटवर्क, और वी कैन से लोकल एरिया नेटवर्क LAN. फीचर्स ऑफ LAN, इट कवर्स रिलेटिवली वेरी शॉर्ट डिस्टेंस. ज़्यादा मतलब हम एक बिल्डिंग के से बाहर लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद है इट डिलीवर्स द डेटा वेरी फास्ट स्पीड. रीज़न इज़ दैट बिकॉज जब चीज़ें छोटी होती हैं, ऑब्वियसली अगर आपको बहुत छोटी डिस्टेंस पे भेजना है, कम डिस्टेंस पे भेजना है, ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस यू वांट टू सेंड सम डेटा, सो दैट डेटा विल बी सेंड ओवर अ वेरी फास्ट स्पीड. राइट. आपको अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे डेटा नहीं भेजना है तो क्या होगा? वो बहुत जल्दी चला जाएगा, डेटा बहुत ही फास्टली जाएगा. और अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उतना ही वो आपका टाइम लेगा डेटा सेंड होने में. थर्ड वन हेयर, इट कंटेन्स 3 to 12 PCs, स्टोरेज डिवाइसेस, प्रिंटर्स एंड अदर पेरिफेरल्स. मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं? हम ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते. जनरली कितना कर सकते हैं? 3 to 12 PCs और डिवाइसेस. Next is, in this computer networking system, computer use their own computing power.
एंड डू नॉट डिपेंडेंट ऑन द होस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हर कोई अपना अलग अलग, हर किसी की अपनी अलग अलग रिसोर्सेज होती हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग पावर होती है, मतलब हर किसी को अलग अलग पावर सप्लाई की जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है और पर्टिकुलर किसी एक सर्वर पे डिपेंड नहीं रहता। दैट इज़ योर लास्ट पॉइंट। क्लियर? लैन। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास टोपोलॉजीज। नाउ व्हाट इज टोपोलॉजी? Individual computers on a network are called workstations. Already I have discussed. लेकिन जब ये वर्क स्टेशंस जो ये कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड होते हैं, तो एक पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर तो कनेक्ट होंगे ना, मतलब एक किसी पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। मतलब ऐसा नहीं है कि रैंडमली आप कोई भी डिवाइस को किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर दोगे। देयर इज़ अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच यू नीड टू फॉलो, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? टोपोलॉजी। नाउ हियर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी: bus, tree, star and ring. Okay, now what is bus topology? Bus topology का मतलब होता है in which we use a linear cable, जिसमें हम क्या करते हैं, एक केबल का यूज़ करते हैं। now this is your cable by the help of which we will connect the devices. यानी कि ये कंप्यूटर है, दिस इज़ द सेकेंड कंप्यूटर, थर्ड कंप्यूटर एंड फोर्थ कंप्यूटर, एंड ऑल दीज आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि एक लीनियर वे में कनेक्ट होते हैं, एक ही केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर्स हमने कनेक्ट कर दिए एक लीनियर वे में, तो ये कहलाता है बस टोपोलॉजी। ओके, इसमें क्या है आपका एडवांटेज? देखो, इट इज़ सिंपल एंड इकोनॉमिकल। सिंपल होता है ऑब्वियसली, देखो सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट वे है, आपने एक केबल लिया और एक केबल से सबको कनेक्ट कर दिया, तो दैट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। नेक्स्ट वन इज़ फेलियर ऑफ एनी वर्क स्टेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ओवरऑल नेटवर्क। वर्क स्टेशन किसको बोलते हैं? कंप्यूटर्स या डिवाइसेज जो नेटवर्क पे कनेक्ट होती हैं। तो अगर एक वर्क स्टेशन फेल हो जाए, मतलब सपोज़ ये वाला आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया, शट डाउन हो गया, तो बाकी सिस्टम्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब ये सिस्टम्स जो हैं वो परफेक्टली रन करेंगे। लास्ट वन इज़ केबलिंग एक्सपेंसेस आर वेरी लो। ऑब्वियसली केबलिंग आपको बहुत ही कम चाहिए, तो अगर आपको केबलिंग के एक्सपेंसेस जो होंगे वो क्या होते हैं? कम होते हैं, मतलब केबल का जो खर्च होता है वो बहुत ही कम होता है। तो दीज आर योर एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है बस टोपोलॉजी की? फेलियर ऑफ द केबल विल ब्रिंग द होल नेटवर्क टू अ स्टैंड स्टिल। यानी कि अगर आपका एक नेटवर्क फेल हो जाए, मतलब आपका केबल फेल हो जाए, मतलब सपोज़ करिए केबल यहाँ से ब्रेक हो गया या ये केबल ही ख़राब हो जाए, तो अगर ये केबल ख़राब हो गया तो क्या बस टोपोलॉजी वर्क करेगी? मतलब क्या आप डेटा सेंड कर सकते हो वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर? Not at all, because the data will always transferred with the help of this cable, and if this cable will get break down, then you cannot transfer the data. So that is a disadvantage of bus. Next, last here comes tree topology. Tree topology is what? It is a branched cable without closed loops. All the computers are connected in a way to form tree like structure. जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो सब ट्री की फॉर्म में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि ये देखिए एग्जाम्पल, दिस वन। ठीक है, इन दिस यहाँ पे क्या है, देखो जैसे आप इसको एक कंसिडर करो, दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अगेन अ ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक कॉमन आपका क्या है, केबल है। यहाँ से कुछ सिस्टम्स यहाँ से कनेक्टेड हैं, कुछ सिस्टम्स ये कनेक्टेड हैं, कुछ सिस्टम्स आप ऊपर कनेक्ट कर सकते हो, कुछ सिस्टम्स नीचे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये कैसा है, ये आपका एक ट्री की फॉर्म होता है, ये एक इन्वर्टेड ट्री हम उसको बोल सकते हैं, जिसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो डिवाइसेस होती हैं, वो ट्री की फॉर्म में कनेक्ट होती हैं। जनरली ट्री कैसा होता है, सपोज दिस इज़ योर रूट, सो दीज आर योर ब्रांचेज हेयर लाइक दिस। तो सेम वही है, लेकिन ट्री में रूट नीचे होती है, इसमें रूट ऊपर होती है, तो इसलिए देखो इसमें रूट ये कॉमन पॉइंट है और इससे आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है। ओके, सेम हेयर, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है और इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, तो दैट मीन्स दीज आर योर व्हाट, दीज आर योर ब्रांचेस, दिस। सो यानी कि ट्री की फॉर्म में कनेक्ट होता है। सो डिसएडवांटेजेस व्हाट, डिसएडवांटेजेस दैट इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स। ऑब्वियसली इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। सेकेंडली इसमें जो केबल की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा होती है, इसमें जो केबल है वो ज़्यादा चाहिए होता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, एंड हेयर एडवांटेज क्या है इसकी? एडवांटेज इज़ दैट फेलियर ऑफ वन वर्क स्टेशन डज नॉट अफेक्ट द ओवरऑल नेटवर्क। ठीक है, यानी कि एक अगर आपका वर्क स्टेशन, अगर आपकी एक पर्टिकुलर डिवाइस कोई ख़राब हो जाती है तो इसका इफेक्ट बाकी सब पे नहीं आएगा, यानी कि पर्टिकुलर वही सिस्टम आपका ख़राब होगा, बाकी सिस्टम्स जो होगा, बाकी जो नेटवर्क होगा, दैट विल वर्क करेक्टली, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
Fine. So we are leaving up to here. In the next class I will discuss about the star topology.